हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। We all know that flower is a reproductive part of angiosperms. Flower is a reproductive part of angiosperms. It is responsible for sexual reproduction in flowering plants. Now, what is the meaning of a bisexual flower? Bisexual means both reproductive organs. That means if male and female both reproductive organs present within a flower, then it is called as bisexual or hermaphrodite flower. Now, in a flower there is a stalk-like structure which connect the flower to the branch. This stalk-like structure is called as pedicel. This stalk-like structure is called as pedicel. Now, this pedicel is connected to a swollen or bulged part. This is called as thalamus or receptacle. Thalamus or receptacle. Now, this thalamus is a swollen structure on which all the flower parts are attached. Now, from the thalamus, a green leaf-like structure is attached which form the outermost whorl of a flower. This green leaf-like structure is called as calyx. This green leaf-like structure is called as calyx. The unit of calyx is sepal. The unit of calyx is sepal. Now, inside the calyx there is the colored part of a flower. There is the colored part of a flower. This colored part of a flower is called as corolla. This colored part of a flower is called as corolla, and the unit of corolla is called as petal. Unit of corolla is called as petal. Now, inside the petals there is a small structure. These small structures are male reproductive parts of a flower and they are called as androcium. They are called as androcium. Androcium is a male reproductive part of a flower and the unit of androcium is called as stamen. The unit of androcium is called as stamen. A stamen is composed of two parts, an anther which is bilobed and terminal structure, and a filament. This filament is cylindrical. This filament is cylindrical and stalk-like part which connect that anther to the thalamus or to the petals or sepals. Now, innermost part of the flower is called as gynosium. The innermost part of the flower is called as gynosium, and the gynosium is female reproductive part of a flower. Gynosium is female reproductive part of a flower. Now, the unit of gynosium
यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड एज पिस्टिल और कार्पेल। यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड एज पिस्टिल और कार्पेल which contains three parts: stigma, uppermost part, style and ovary. Stigma, style and ovary. So इस टाइप से एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में 4 ओरल्स होते हैं। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में 4 ओरल्स होते हैं जिसमें फर्स्ट ओरल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, द फर्स्ट ओरल इज कैलिक्स, सेकेंड ओरल इज कोरोला, थर्ड ओरल इज एंड्रोसियम एंड फोर्थ ओरल इज गाइनोसियम। फोर्थ ओरल इज गाइनोसियम। Now the unit of calyx is sepal or the group of sepals is called as calyx. Group of petals is called as corolla. Group of pistils or carpels is called as gynoecium and group of stamens is called as androcium. Mainly that calyx and corolla. Calyx and corolla both are accessory reproductive parts. Accessory reproductive parts of a flower. That means both parts do not form any type of gametes but help in the process of reproduction. That's why they are called as accessory reproductive parts of a flower. Mainly the calyx protect the flower parts. Calyx protects the flower parts in bud condition. Other flower parts in bud condition. When flower is in bud stage, then this calyx protect the other flower parts by surrounding them. So this calyx protects the other flower parts in bud stage. जब फ्लावर की बड बनती है, फ्लावर बनना शुरू होता है, तब ये जो कैलिक्स है अदर फ्लावर पार्ट्स को इस तरह से एनक्लोज किए हुए रहता है और जैसे ही फ्लावर ओपन होना शुरू होता है ये जो कैलिक्स है ये इस तरह से ओपन हो जाता है। इसी कारण से यह बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में ये होता है। नाउ द कोरोला। कोरोला इज कलर्ड पार्ट ऑफ ए फ्लावर। कोरोला जो है ये कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का और कोरोला का मेनली फंक्शन होता है दैट इट इंटरैक्ट द इंसेक्ट्स। मेनली इट इंटरैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर क्रॉस पोलिनेशन। दैट मीन इट हेल्प इन क्रॉस पोलिनेशन। इट हेल्प्स इन क्रॉस पोलिनेशन। नाउ the main reproductive parts. Main reproductive parts are androcium and gynoecium. Androcium is male reproductive part of a flower. Male reproductive part of a flower और इसकी जो यूनिट है वो है स्टेमन। स्टेमन जो है इसके अंदर 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से अपन ने स्टेमन की स्ट्रक्चर देखी। इसकी जो एपिकल और टर्मिनल स्ट्रक्चर है विच इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज एंथर। बाइलोब्ड जो टर्मिनल स्ट्रक्चर है इसको अपन कहेंगे एंथर। एंथर जो है इसके अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है विच आर द मेल गेमेटोफाइट्स। पोलन ग्रेन्स आर द मेल गेमेटोफाइट्स विच कैरी मेल गेमेट्स। ये मेल गेमेट्स को कैरी करेंगे और जो फिलामेंट है इस तरह से स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एंथर को इस तरह से ऊपर की तरफ बनाए हुए रखेगा और साथ ही साथ इसको कनेक्ट करेगा थैलेमस से या फिर कोरोला या कैलिक्स से कनेक्ट करके रखता है। बट मेन पार्ट इज एंथर जो पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करेगा। नेक्स्ट पार्ट है गाइनोसियम। तो गाइनोसियम जो है यह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का जिसकी यूनिट है पिस्टिल और कार्पेल। गाइनोसियम की यूनिट है पिस्टिल एंड कार्पेल। जो पिस्टिल और कार्पेल है इसके अपन ने स्ट्रक्चर देखी
तो इसके अंदर अपन ने डिस्कस किया कि इस तरह से 3 पार्ट्स हैं, इस तरह से 3 पार्ट्स हैं। तो अपर मोस्ट जो पार्ट है इसको अपन ने कहा स्टिग्मा, मिडल पार्ट जो है इसको अपन ने कहा स्टाइल, एंड जो बेसल पार्ट है इसको अपन ने कहा ओवरी, इसको अपन ने कह दिया ओवरी। अब देखिए जो स्टिग्मा है यह पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, यह पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। दैट मीन इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स, इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। दैट मीन आफ्टर पोलिनेशन जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पर आकर रिसीव होते हैं, स्टिग्मा पर आकर अटैच होते हैं। फिर बात करते हैं स्टाइल की। तो स्टाइल जो है यह सिलेंड्रिकल सॉलिड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, पैक्टिनेज एंजाइम, और यह जैसे ही पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाता है, यहाँ पर जैसे मान लो पोलन ग्रेन रिसीव हुआ है, इस पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा तो पोलन ट्यूब बनेगी, और पोलन ट्यूब को ओवरी तक पहुंचने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है स्टाइल। और लास्ट पार्ट है ओवरी विच इज बेसल, ब्लश्ड और स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल और कार्पेल। ओवरी के अंदर इस तरह से ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी की जो कैविटी है इसको अपन कहते हैं ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल। इन लोक्यूल्स के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, इनके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होंगे जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन करते हैं, और इस ओव्यूल के अंदर ही एग सेल प्रेजेंट होती है, इसी के अंदर ही एग सेल, दैट मीन एम्ब्रियो सेक विच इज फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियो सेक के अंदर एग सेल प्रेजेंट होती है विच कंटेन द फीमेल गैमेट और विच इज अ फीमेल गैमेट। सो इस प्रकार से 4 ओरल्स हैं और डिफरेंट ओरल्स का डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। मेनली एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम both are the main reproductive part of a flower, and corolla and calyx both are the accessory reproductive parts of a flower. So next topic we will discuss into next lecture. So thank you so much.